A very good afternoon to all of you. Our NDA solutions now we are on the verge of completions. So let us start. So our first question is, we have given one circle equation and one is identity function जिसको हम कहते हैं y equals to x. ये क्या होता है? एक straight line होती है which is passing through the origin. Two lines are given to us, one circle and one line is given to us, and A1 and A2 be the area of major and minor segments. Now we have to find A1 and A2. So let us do this. Now you can see this equation. ठीक है. So how this will we can solve? We have to change it to the equation x minus h whole square plus y minus k का whole square is equals to r square. In this format we have to write this equation. So how we can do that? That we can do by completing the squares method. X square and x minus 2x can be taken into a single bracket where we can form x minus h. ठीक है. h can be easily find out through completing the square methods. So let us solve. Now I can write x square minus 2x combined plus y square is equals to 0. ठीक है. Now here to make it a minus b का whole square, what I can do? I can do like this, because it is x square minus 2ab. A is my x, b is my 1. So now if I have added here plus 1, so I have to subtract minus 1 as well. So write here y minus 0 whole square, and this minus 1 can be here. It means your h is 1, your k is 0 and your radius is 1. ठीक है. I hope this is understood to you. ये हमारा h होता है, ये this is our k and this is our radius. ठीक है. चलो let us solve. Now a circle will be, what was the center? 1 0. So 1 0 will be here and radius is also 1. So this is our circle. Circle radius is 1 0 and radius is 1. ठीक है. Now y equals to x. So this is the line passing through. So this is our y equals to x. ठीक है. Now we have to find your small portion. This is your area of minor segment. ठीक है. This is your A2 and the bigger area is your A1. ठीक है. Now what we have to see, अब let us mark it. हम थोड़ी marking कर देते हैं. ठीक है. मैं marking कर देती हूँ. Now this center I can be writing O. Wait, I'll change the color. ठीक है. Let us write O is my center. This origin is O dash, this is A. ठीक है. Now you can see कि our OA and O dash. ठीक है. These are the radius. This is 1 and this is also 1 we have. ठीक है. Now we have triangle O dash A. ठीक है. Now what I will do? I have drawn a altitude. ठीक है. मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हमारा एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो बेस इज़ माई ओ डैश ए एंड हाइट इज़ माई ओ एंड आई विल राइट इट बी. ठीक है. ओ बी और हाफ तो ये मेरा नीचे आ ही रहा है. नाउ ओ रेडियस वी हैव गिवन. नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ हेयर. Okay, now let's just see कि this O, when our radius is same, O dash A and O dash. ठीक है. These are the same. Now we know the property कि if our this sides are equal, so their opposite angles are also equal. अगर हमारी sides equal है तो हमारा जो ये है, ये वाली चीज़ एंड ये वाली चीज़ भी इक्वल होगी. ठीक है. ये दोनों, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए. नाउ दो एंगल्स हमारे इक्वल है. सपोज x प्लस एक्स, और ये सेंटर वाला हमें निकालना है, ओ डैश वाला. ठीक है. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? 180 होती है.
तो ऑब्वियसली हमारा जो इस सेंटर वाला है व्हाट इट विल बी, ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। दो अगर हमारे इक्वल है साइड्स, ठीक है, तो हमारा जो ये ओ डैश होगा ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। नाउ अब हमारे पास थीटा क्या आ गया, ये हमारा बीच वाला जो है 90 डिग्री आ गया, और जो हमारा ओ डैश ए ओ और हमारा ओ डैश ए जो है ये हमारे 45 आ गए। ठीक है, तो हमें जैसे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा से हम साइड्स निकाल सकते हैं ना, उस तरीके से हमें इसकी साइड्स निकालनी होगी। ठीक है, तो उससे हमारा अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बस दिमाग से लगाना है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमारी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है वो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर हमारा 1 है और यहाँ हमारा और हमारा माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, अब हमारी जो ओ डैश बी है, ओ डैश बी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा जो आ रहा है ये साइन थीटा हमारा साइन 45 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ना हमारा, एक तरह से आ रहा है ओ डैश अपॉन बी इज इक्वल्स टू ओ इंटू ओ डैश, ये हमारा साइन 45 आ रहा है। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। ओ बी डैश हमें निकालना है, ये हमारा 1 है। ठीक है, तो ये हमारा 1/√2 आ गया। अब अगर हम पाइथागोरस लगाए तो हमारा जो बेस आ रहा है ओ डैश ए क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये मतलब हमारा जो एरिया आया है इसका ट्राइंगल का वो हमारा, अच्छा √2, ये हमारा 2 आ जाएगा, तो 1/4 आया है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दूँ, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब हमारी ये जो चीज़ है ये मेरा आएगा पाई, ये आएगा माइनस, और ये मेरा आ गया 1/4। ठीक है, नाउ अब ये चीज़ जो हमारी आई है ये फुल जो हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, और उससे ओके, ये मैं गड़बड़ कर दी, ये मैंने गड़बड़ ये की है कि ये तो हमारा ट्राइंगल आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना था, हमारा ये ट्राइंगल है। ठीक है, और ये इधर लाइन है, तो ये वाली चीज़ के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा पहले, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा होगा 90/360 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा 1 है, पाई है, तो ये आ जाएगा हमारा पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा पाई प्लस, ठीक है, तो अब हमारे पास एरिया क्या, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ हमारे पास सेक्टर आ गया, और ये हमारे पास वो तो था ही था, ट्राइंगल का सर्कल का एरिया तो हमारे पास था ही था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पाई/4 और ये प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो दिस वे दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, ये आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक बार प्लीज़ खुद से पेन और पेपर लेके सॉल्व करना, देन इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है 2a1। ठीक है, तो 2a1 जो था हमारा, a1 है हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया और a2 है माइनर सेगमेंट का। ऊपर हमने माइनर सेगमेंट का निकाला था। ठीक है, तो वो हमारा आ गया 3π/2/4। अब मेजर सेगमेंट, जैसे हमारा ये ट्राइंगल था, सॉरी सर्कल था, और ये हमारी हिजे, अब ये जो चीज़ है ये मेरा मेजर है, तो मेजर कैसे आ जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया माइनस इसका माइनर सेगमेंट का अगर मैं करूँगी तो वहाँ से मेरा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई
माइनस 3 प्लस 2/4। ठीक है, नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस थिंग। ये आ जाएगा 4, तो ये एक तरह से आ जाएगा मेरा पाई माइनस 2/4। ये मेरा A1 आ गया। ठीक है, नाउ पुटिंग ऑल वैल्यूज़ हेयर, ये मैं वैल्यूज़ जब यहाँ इसमें पुट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये आएगा 4 पाई, कट गया। न्यूमिनेटर मेरे पास पाई आ गया है। ठीक है, मतलब A1 प्लस A2 मेरा पाई है और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको, और नीचे A1 माइनस 3A2। तो ये थोड़ा सा ना, A1 जो है वो है मेरा पाई माइनस 2/4 और माइनस ये आ जाएगा 9 पाई, आ जाएगा माइनस 6/4। तो ये मेरा आ जाएगा माइनस 8 पाई और ये आ जाएगा मेरा माइनस 8/4। नहीं, कुछ गड़बड़ है, ये मेरा 2 पाई आना, नीचे ना 2 आना चाहिए। तो एक बार प्लीज़ इसकी कैलकुलेशंस देख लेना कि हाँ, तो योर पाई इज़ योर आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो बस आपको ऐड ही करनी है चीज़ें। नाउ नेक्स्ट, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स। ठीक है, अ मैन सेलेक्ट्स 2 बॉल्स एट एनी रैंडम रेट पे 2 बॉल्स सेलेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ दीज आर ऑफ सेम कलर के क्या होगी। तो ऑब्वियसली पहले क्या होगा हमारा, 5 में से मुझे 2 बॉल्स चाहिए। ठीक है, टोटल केसेस कितने हैं, 9 में से 2 चाहिए, या तो ब्लैक बॉल्स आएगी, और सेकंड केस क्या आ जाएगा, 4 में से 2 चाहिए, मतलब वाइट बॉल्स 2, और टोटल केस है 9/2। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 × 4 और नीचे 2 प्लस 4 × 3/2। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई इज नॉट राइटिंग। ठीक है, तो ये मेरा 2, ये 10 आ जाएगा, और 16 ऊपर तो मेरा 16 आ गया। ठीक है, ऊपर मेरा 16 है, एंड नीचे मेरा आ जाएगा 9 × 8 और ये 7 2, ये मेरा आ गया 9 × 8 7 आ जाएगा 2, तो ये 4 36। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है मेरा, डिनोमिनेटर आ जाएगा 36। नाउ 4 4 जा एंड 4 9 जा, 4/9 इज द आंसर। यस, सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अ रैंडम वेरिएबल फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन हमारे पास क्या होता है, मीन होता है n × p, हमारे पास 5 दिया है, और वेरिएंस होता है NP/Q, हमारे पास कितना दिया है, 4 दिया है। तो अगर मुझे Q की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो ये मेरा कट जाएगा, तो मेरा Q क्या आ जाएगा, 5/4। और हमें पता है P + Q कितना होता है, 1 होता है, तो P कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, ये मेरा P आ गया। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें P की पावर x, अब हमारे पास था n = P = 4 दिया हुआ है, तो 1 यहाँ पे 1, तो n कितना आ गया मेरा, P Q आ गया ना, अच्छा 5 दिया, सॉरी ये मेरा 5 दिया है, तो n कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, n 25 आ गया, P n Q की भी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई है, तो मैं लिख देती हूँ n जो है मेरा वो 25। नाउ P x3 निकालना है, तो ये कैसे निकालते हैं हम, n और जो भी हमें निकालना होता है वो हम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4/5, ये मेरा r आ जाएगा, और 1/5 ये मेरा कितना आ जाएगा, 22, n - r। ठीक है, तो बस अब सॉल्व करना है इनको। तो जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा 23 × 100। ठीक है, ये चीज़ जब मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 4/5 की पावर 3
ये भी 3 आएगा, और ये मेरा आ जाएगा 1 × 5 की पावर 23 था ना ये मेरा 3 था, 22, ठीक है। ये मेरी पावर आ गई 22। नाउ अब मेरा इसके साथ मेरे पास ऑलरेडी 5⁻23 दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये मैं कट कर दूंगी, ये मेरा 2 बच गया। तो नीचे मेरा 25 आ गया, एक तरह से 25 ही बचा, बाकी सब तो कट गया। तो नीचे अगर 25 है, इस 25 को मैं कट करूँगी, ये 4 आ जाएगा, है ना। आपको दिख रहा है कि ये मेरा 4 आ गया। तो ये मेरा आ जाएगा 22। अच्छा, हमने ये P और Q को शायद एक्सचेंज कर लिया। ओह शिट। चलो, जब हमने ये लिखा ना 25C3, ठीक है, तो हमें 4/5 जो है उसको यहाँ पे लिखना है 22, और 1/5 है उसको लिखना है 3, ठीक है। ये हमसे थोड़ी गलती होगी। तो नाउ अब जब इसको मैं सॉल्व करूँगी, ये मेरा आएगा 23 × 100 और इंटू 5⁻23 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो ये मेरा इससे तो कट हो गया, और इससे तो ये 325 हो गया ना। तो मेरा नीचे एक तरह से 25 बच गया, ठीक है। ये मेरा 25 बच गया। तो ये मेरा आ गया 4। इसकी ऑलरेडी पावर कितनी थी? 22 थी। तो 4 × आ गया इसका, तो मेरा ये क्या हो गया? 4 की पावर 23 हो गया। फोर की पावर 23। तो आप देख लो 23 यहाँ पे भी है और 23 यहाँ। तो मुझे यही निकालना है लैम्डा और 4 की पावर लैम्डा। तो लैम्डा इज़ माई 23, ठीक है। नाउ we have given A, B, C in HP, then what is the 1/B minus A plus 1/B minus A, ठीक है, हमारे पास दिया है। तो दिस क्वेश्चन आई हैव अर्लियर ऑल्सो सॉल्व। तो ये वहीं से ये देखो, अगर हमारे पास A, B, C HP में होते हैं तो हमारे पास B क्या होगा? 2AC अपॉन A प्लस C ऑब्वियसली हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ HP में आए तो 1/A, 1/B एंड 1/C किस में होंगे? AP में होंगे। तो AP का भी आपको पता है कि मिडल टर्म क्या होती है? एवरेज आउट होती है अदर 2 टर्म्स का। तो वहीं से ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया इसका। C प्लस A की जगह हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं 2AC अपॉन B, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की, एलसीएम लिया एंड व्हाट वी गॉट कि हमारा जो 1 ये चीज़ थी 1/B माइनस A प्लस 1/B माइनस C कितना आ रहा है? 1/A प्लस 1/C। तो आप देख सकते हो कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या है। हाँ, ठीक है। तो हमारा ये आ रहा है A/C प्लस A/ दिस। तो दिस ऑप्शन इज आवर करेक्ट, ठीक है। एलसीएम्स लेना है और जो वैल्यू दी है वो हमें पुट कर देंगे, बस ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास तिरुपति वर्ड है और हमें ऐसे अरेंज करना है कि जो हमारे टीज हैं दे शुड बी टुगेदर, वो हमेशा टुगेदर। नाउ आप क्या करो, आप दोनों जो टी है ना उसको एक बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। अदर कौन सा क्या क्या बचा? आई बचा, आर बचा, यू बचा, पी है, ए है एंड व्हाट इज़ लेफ्ट? आई लेफ्ट, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स वी हैव नाउ, ठीक है। अब इसको आगे पीछे करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स टी ओनली। नाउ वी ऑल नो कि जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं हाउ दे कैन बी अरेंज्ड, वो सिंपल फैक्टोरियल में चले जाते हैं, बट जो हमारे रेपिटेटिव होते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बिकॉज वी हैव 2 आइज देयर, ठीक है। ये आ रहा है। अब ये जब हम सॉल्व करेंगे दिस इज़, ये हमारा आएगा 7 × 720 अपॉन 2। तो ये आपकी 360 × 7, दिस इज़ योर न्यूमिनेटर, ठीक है। सो योर न्यूमिनेटर इज सेट, इट इज़ 360 × 7,
इट इज़ 360 इंटू 7 टोटल नंबर ऑफ केसेस। नाउ अगर हम ये देखें कि सॉरी ये फेवरेबल केसेस, टोटल नहीं फेवरेबल केसेस है, ये ऐसी होती है ना प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केसेस। अब टोटल केसेस क्या हो जाएंगे, 8 है हमारे पास डिजिट, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हाउ मेनी ऑफ देम आर रिपीटिंग, इट इज़ टी एंड आई, दे बोथ आर रिपीटिंग, सो यू हैव टू put 2 factorial into 2 factorial. This way only you'll solve. Now calculation part is 360 into 7 upon, it is 7 8 ja 56 upon into 720. Now these 2 into 2 they are going in numerator. Calculation part है that you can do on your own as well. तो ये 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज़ आवर, ये हमारा ये है, ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 8 है, ये 16 है, ये 4 है, 2 है, तो 1/4 इज़ आवर आंसर, ठीक है। सो हाई यस, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. So thank you so much. I hope you are enjoying this and you are liking this also. Thank you so much.